Hello to all. We have started APS type, and due to some technical issues in the last video, we have already done one video that is APS type. That is, I have that particular video is not completed. So only I have started with the part two where we just left. So APS style referencing we have started. So APS style में we what we have done that if there is one author, then how to cite it out. If one author, then how to cite, how to put it in the reference entry. Similarly, when there are two authors, then how to go with it. When there are three or more authors, then how to cite and how to put in the reference entry. Then when there is a group author or organization, then how to go with it. Then when there is no date, when because sometimes we find some papers, some research papers where there is no date, how to cite and how to put in reference entry. Then there was citing more than one study at a time, that also we have done. Then we just left over here. So I'm going to start with this particular portion, that is different sources but same authors with the same year. What it was, क्या होता है कई बार कि आपका जो है एक सेम ऑथर है. इफ यू कैन सी दीज आर टू डिफरेंट पेपर्स, these are two different papers, but the author is same in both the cases. दोनों में author same है. And what happened, ईयर भी सेम है, 2011 का ही ये पेपर है. पेपर फर्स्ट पेपर इज कॉर्पोरेट फोकस एंड स्टॉक रिटर्न. सेकंड पेपर ही हैज पब्लिश्ड इन 2011 ओनली with the name Legal Person Ownership Diversification Strategy and Firm Profitability in China. Source different है, title different है, but author same है and year भी same है. So how in that case, how we will cite and how we'll give the reference entry? If you can see over here, what we have done, 2011A and 2011B. आप जो है इनको ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 11A and 11B करके. अगर तीन है then you can 11 put it at 11C, but probably it can be 2 or 3 only. So in that case आप ऐसे उनको साइट कर सकते हैं. बाकी सारा सेम ही रहेगा जैसे हम बाकी की साइटेशन करते हैं. ऑथर, ईयर, टाइटल, जर्नल, देन योर ये टैलिक होगा. volume number and journal title is italic. Yes. Then issue number, then page number, or DOI if it is given. So this is the way how we will put it down. 2011A and 2011B हम ऐसे कर देंगे रेफरेंस एंट्री में. एंड हाउ आई हैव डन, मैंने क्या किया, जो टाइटल था उसका अल्फाबेट देख लिया. सी कॉर्पोरेट वाले को मैंने पहले लिख दिया. लीगल एल से जो स्टार्ट हो रहा है उसको मैंने अलग से रख सेकेंड नंबर पे रख दिया. अब इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे. ऑथर नेम एंड ईयर, ऑथर नेम एंड ईयर, बट ईयर में आप 2000 जब भी आप साइट करेंगे you have to mention either it is 2011A or 11B, because अगर सिर्फ आप 11 लिख देंगे तो it will create confusion that which paper you are talking about. Done है. So when you are putting in between or at the end, तो आपकी ये रहती है brackets के अंदर. And if you are putting in a narrative form in the starting of your paragraph, then you will put in this form author, last name and year. So this is the next part is, अगर आपको बुक को किसी, if any book you want to cite or you want to put in a reference entry, citation तो बिल्कुल सेम होगी जैसे हम in text citation is going to be exactly same what you have done in the other cases, that is R0 2017 will be citation आपकी रहेगी. इनसाइड टेक्स्ट है तो कैसे, और नरेटिव में जैसे दूसरों की थी. बट इसको हमने रेफरेंस में कैसे डालना है, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. लाइक आर नॉट, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम आ गया ऑथर का, ईयर आ गया. अब दिस इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट थिंग. कैसे हमें पता चलेगा ये बुक है. आपका जो टाइटल है ना, दैट इज गोइंग टू बी इटैलिक. इफ यू रिमेम्बर, हम नॉर्मल जर्नल पब्लिकेशंस में टाइटल को स्ट्रेट रखते हैं, वर्टिकल अटैलिक नहीं करते. बट बुक है तो आपका टाइटल जो है दैट विल बी इन अटैलिक फॉर्म. साथ में आपके एडिशन आएगा. बुक हमेशा एडिशन होता है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ, 20th एडिशन. सो वट एवर द एडिशन इट इज हैविंग, एवरी बुक इज गोइंग टू हैव द एडिशन. तो आप एडिशन लिख देंगे उसका.
कौन सा पब्लिशर है उस पर्टिकुलर आपकी बुक का, दैट यू विल पुट इट डाउन. सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ बुक की रेफरेंस आप डाल रहे हैं. अगेन रिपीटिंग, जो साइटेशन है दैट इज गोइंग टू बी सेम हाउ वी साइट द अदर्स. So here I have given the example also in text citation का. इन साइट टेक्सेशन साइटेशन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो कैसे होता है, लास्ट नेम और देन ब्रैकेट में ईयर. मिडल में साइटेशन होती है तो ब्रैकेट में दोनों चीजें आ जाती है विद कोमा, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए. अगर एंड में है देन ऑल्सो सेम, मिडल या एंड में अगर आप साइटेशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर पूरा सब कुछ आएगा, नेम ऑफ द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर कॉमा ईयर. एंड अगर बिगिनिंग में है लास्ट नेम एंड ब्रैकेट में ईयर. तो दिस इज द डिफरेंस इन केस ऑफ आपकी साइटेशन इन बिटवीन और लास्ट में या स्टार्टिंग में. कुछ और देख लेते हैं अगर कुछ और भी है. दैट इज कई बार क्या है, हमें जरूरी नहीं है आपको पीडीएफ फॉर्म में ही आर्टिकल मिले, आप मैगजीन से भी आपको आर्टिकल मिल सकता है, वेबसाइट से भी मिल सकता है. तो सिमिलरली इफ यू कैन सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी ने बनाई हुई है उसको भी आप कोट कर सकते हैं. वीडियो या ऑडियो अगर आपने किसी की देखी है उसकी बोली हुई चीज को आप साइट कर रहे हो या लिखी हुई चीज को आप साइट कर रहे हो, तो दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. इफ इट इज पावर पॉइंट, व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ओनली, आपकी बाकी की साइटेशन सेम रहेगी, ओनली द डिफरेंस इज गोइंग टू बी आप जो रेफरेंस आपका सेम रहेगा. साइटेशन के केस में आप ना स्लाइड नंबर देंगे जरूर, कि कौन सी स्लाइड नंबर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एक दिया है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन देन यू कैन गिव दैट, 5 से 8 नंबर की स्लाइड तक की बात है तो स्लाइड नंबर यू हैव टू मेंशन. सिमिलरली नेक्स्ट इज इफ इट इज वेब पेज, तो आप वेब पेज, एक तो आप वेब पेज ऑब्वियसली इन केस ऑफ रेफरेंस जब आप देंगे तो उसमें वेब पेज का लिंक देंगे. बट फॉर एग्जाम्पल मैंने आरबीआई की साइट से कुछ रीड आउट किया है तो उस पेज का लिंक आई विल गिव इन द रेफरेंस पार्ट, बट साइटेशन में मैं उस पेज का पैरा नंबर दे सकती हूँ अगर इफ इट इज रिलेटेड टू सम पैराग्राफ. वीडियो एंड ऑडियो में व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस, यू विल गिव द टाइम पीरियड. अगर तो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है देन यू कैन गिव दैट एग्जैक्ट टाइम, बट अगर एक रेंज है देन यू कैन गिव दैट रेंज ऑल्सो, कि आप 2.2 मिनट से 2.34 मिनट से मेरा जो पॉइंट है वो 10.30 तक चला है. सो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन गिव द टाइम स्टैम्प इन केस ऑफ एनी ऑडियो और एनी वीडियो साइटेशन यू वांट टू पुट इन. अब एक और डिफरेंट चीज देख लेते हैं, दैट इज वेब पेज. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट हाउ वी विल पुट इट डाउन वो मैंने आपको बता ही दिया है. बट उससे भी इम्पॉर्टेंट वेब पेज की साइटेशन वी हैव डन, दैट हाउ द साइटेशन पार्ट इज गोइंग टू डन. रेफरेंस में वेब पेज को कैसे डालना है, ऑथर, ईयर, मंथ, दैट इज मंथ, डे ऑफ पब्लिकेशन. इट विल बी गुड इफ यू हैव, अगर आपके पास क्योंकि वेब पेज या मैगजीन या न्यूज़पेपर या कोई आप ऐसी विकिपीडिया पे कुछ देख रहे हैं तो ज्यादातर क्या होता है, आपको एग्जैक्ट डे का पता रहता है कि किस दिन की पब्लिकेशन है वो. तो इफ इट इज गिवन देन यू मस्ट पुट द date exactly. So if you can see 2020 and November 19 exact day of publication I have put it down over here. Then title of the work आ जाएगा, वेबसाइट का नाम देंगे आप, like this website name I have given, and then URL, which is very important if you are citing web page. Again repeating, web page में web page का URL देना is very must. लास्ट, आई थिंक लास्ट पॉइंट इज मैगजीन आर्टिकल. अगर आप किसी मैगजीन से किसी आर्टिकल को साइट कर रहे हैं देन व्हाट इज द केस, सेम जो वेब पेज का था, ओनली द डिफरेंस इज गोइंग टू बी आपका यहाँ पे मैगजीन का टाइटल आ जाएगा. तो वही है, ऑथर का नाम आ गया, डेट आप प्रॉपर डाल दीजिए, ज्यादा बढ़िया है. देन उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल आ जाएगा, देन कौन सी मैगजीन है और उसका यूआरएल इफ इट इज गिवन. अगर तो यूआरएल गिवन है तो यूआरएल डाल दीजिए पेज नंबर के साथ. इफ ओनली पेज नंबर यू आर हैविंग, इफ यू हैविंग वन हार्ड कॉपी तो पेज नंबर डाल दीजिए. सो दिस इज हाउ वी विल पुट, how we will cite, how we will put in reference if any magazine article you want to put as a reference. So with this I am going to end this video over here. If I'll get some more points, अगर APA में कुछ मेरे से रह गया है, you can comment it down that then I will do that part also.
So with this, I'm going to end this. If you like this video, kindly kindly press like button and also subscribe my channel. Thank you.